So, hi friends, my name is Yasin, and in the previous video lecture, I had written down the names of kinds of pronouns. Today, I am going to explain each one of them one after another. So, just take a look. The first one, the very first one. The first one is personal pronoun. What do you mean by personal pronoun? I, we, you, he, she, it, and they are called personal pronouns because they are used for persons. As you know that there are three types of person: first person, second person, and third person. I and we stand for first person, stand for second person, and he, she, it, and they stand for third person. Therefore, my dear friends, I, we, you, he, she, it, and they are called personal pronouns. Now come to possessive pronouns. What do you mean by possessive pronouns? The pronouns used to show possession, right? Is called possessive pronoun. And I think that you have already studied, but you have doubt, you are confused. So just I'm going to clarify them all. So as I told you, possessive pronoun means the pronoun used to show possession is called possessive pronoun. How? Just take a look. I'm writing down on the board. Some examples are mine, right? Your, his, hers, theirs, ours. These are called possessive pronouns. You can use them in sentences like this book is mine. This book is yours. Don't write your, write yours. This book is his. This saree is hers. House is theirs. So, and this school is ours. Hence, if you use these words, these are said to be pronouns. Alright? Now, coming on to reflexive pronouns. So, what do you mean by reflexive pronouns? Reflexive pronoun means myself, yourself, himself, herself, themselves, itself, etc. These are said to be, reflexive pronouns. As I had written down, reflexive pronoun. Reflexive pronouns, the pronouns myself, ourself, ourselves, yourself, yourselves, themselves, itself. These are called reflexive pronouns. The third one is reflexive pronouns. Why they are called reflexive pronouns? Because the action done by the subject turns back upon the subject. क्योंकि जो subject के द्वारा काम किए जाते हैं उसका फल खुद subject पर पड़ता है, right? So therefore, if अगर मैं पूछूं आपसे कि इनमें बताओ इन सेंटेंस में reflexive pronouns कौन से हैं, तो आप easily कह सकते हैं. यहाँ से मैंने लिखना स्टार्ट किया है. myself, ourselves, yourself, right? Yourselves, himself, herself, itself, themselves. ये सारे के सारे reflexive pronouns हैं. इससे आप सेंटेंस कैसे बना सकते हैं? जैसे I have ruined myself. मैंने अपने आप को बर्बाद कर लिया, right? And you have done it yourself. तुमने इसे खुद किया है. She has done it herself. उसने इसे खुद किया है. It has happened itself. ऐसा खुद हुआ है. तो आप देख रहे हैं कि जो सब्जेक्ट कुछ कर रहा है, सब्जेक्ट के किसी भी चीज के करने का असर खुद सब्जेक्ट पर पड़ता है. जैसे कि मैंने कहा कि I have ruined myself. मैंने आपको बर्बाद कर लिया है. या फिर he has killed himself. उसने खुद को मारा है. तो जो भी एक्शन हुआ है, देखिए वो टर्न बैक होकर के सब्जेक्ट पर जाता है. Therefore इसे reflexive pronouns कहते हैं, यानी reflect हो रहा है, reflection दिख रहा है काम का सब्जेक्ट पर. Therefore अगर आपको किसी भी सेंटेंस में, किसी भी एग्जामिनेशन में reflexive pronouns को सर्च करना पड़े, इंसर्कल करना पड़े, सर्कल करना पड़े, तो myself, ourself, yourself, himself, herself देखेंगे और उसे टिक आउट करेंगे, राइट? अब मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पे कहीं कहीं पे आपको देखने को मिल सकता है yourself और yourselves. कहीं पे आपको देखने को मिल सकता है ourselves, कहीं पे देखने को मिल सकता है themselves, कहीं पे देखने को मिल सकता है self. I mean to say that कहीं पे सिर्फ self देखने को मिलेगा और कहीं पे selves देखने को मिलेगा.
तो इनमें अंतर क्या है? तो सेल्फ जो सिंगुलर होगा उसमें सेल्फ का प्रयोग करेंगे, जो भी प्रोनाउंस स्टैंड फॉर करते हैं सिंगुलर के लिए उसमें सेल्फ का प्रयोग करेंगे, और जो प्रोनाउंस स्टैंड फॉर करते हैं प्लूरल्स के लिए उसमें सेल्फ्स का प्रयोग करेंगे। और स्पेल जग जाहिर है, SELF सेल्फ ये सिंगुलर के लिए, और SELVES सेल्फ। तो जो ये प्लूरल वर्ड होंगे, जैसे अगर आप यू सिंगुलर को भी डिनोट करता है और यू प्लूरल को भी डिनोट करता है। तो यू से यदि आप किसी वन पर्टिकुलर पर्सन को डिनोट कर रहे हैं तो योरसेल्फ कहिए, और अगर आपका इशारा एक से ज्यादा की तरफ है तो आप योरसेल्फ्स कहिए। ओके, आई थिंक द कंफ्यूजन क्लियर, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। नाउ कमिंग ऑन टू एम्फेटिक प्रोनाउंस। जैसा कि नाम से क्लियर है, एम्फेटिक मतलब जोरदार, जोर देने के लिए, एम्फेसिस के लिए यूज किए जाते हैं। सो वेरी सिंपली आई हैव रिटन डाउन हियर एम्फेटिक प्रोनाउंस। सेम देखिए जैसा कि ऊपर में है, सेम वर्ड्स नीचे भी लिखे गए हैं। Myself, ourselves, yourself, ourselves, herself, himself, itself, and themselves are called emphatic pronouns when they are used for the sake of emphasis. जब वो sake of emphasis, for the sake of emphasis के लिए यूज किए जाते हैं तो इसे emphatic pronouns कहते हैं। इससे हम emphasis देते हैं, किसी भी बात पर जोर देते हैं, बल देते हैं। तो अगर इसमें आपको चुनने को कहा जाए, चूज करने को कहा जाए कि बताओ भाई एम्फेटिक प्रोनाउंस कौन से हैं, तो माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, फिर आप देख सकते हैं हिम सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ, ये सारे के सारे एम्फेटिक प्रोनाउंस हुए, क्योंकि इसका प्रयोग एम्फेसिस के लिए होता है, फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस। कहेंगे सर कैसे? तो मैं सेंटेंस बोल के आपको बताऊं। जैसे आई हैव पास्ट माई एग्जामिनेशन माई सेल्फ, मैंने एग्जामिनेशन खुद पास किया है। जैसे यू हैव टू डू इट योर सेल्फ, तुम्हें इसे खुद करना है। दे हैव डन द वर्क देमसेल्व्स, उन लोगों ने इसे खुद किया है। तो कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि जो ऊपर वाले वर्ड्स हैं वो नीचे वाले वर्ड्स हैं, दोनों में बहुत हद तक समानता है, लेकिन इनमें जो काम स्वयं करता है वो रिफ्लेक्शन उसी पर जाता है, लेकिन इसके आधार पे कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है और एम्फेसिस करने के लिए हम इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। Therefore, these pronouns myself, ourselves, yourself, yourself, herself and himself, itself and themselves, इन सारे प्रोनाउंस को कैसा प्रोनाउंस कहेंगे माय डियर फ्रेंड्स? एम्फेटिक प्रोनाउंस कहेंगे, राइट? सो टेक अ लुक ऑन अनदर वन। नाउ कम टू demonstrative pronouns. As I have written down here very nicely and beautifully, the pronouns used to point out the object or objects to which it refers is called the demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns, as you know the word demonstrate. What do you mean by demonstrate? Demonstrate means to denote something or to refer something or to indicate something, right? So for these we use some words. What are the words? Just I am writing down on the board. The words are these, that, these and those, right? These are the words which help to demonstrate something. अगर हमें किसी भी चीज़ को बताना होता है यह या वह, ये सब या वे सब, तो हम प्रयोग करते हैं दिस, दैट, दीज एंड दोज का। और एक बात मैं बता दूं आपको, दिस, दैट, दीज, दोज, आप भले ही जानते हो दिस एंड दैट ये सिंगुलर हैं, दीज एंड दोज ये प्लूरल हैं। सो दिस एंड दैट का प्रयोग आप करेंगे सिंगुलर थिंग के लिए, सिंगुलर नाउन के लिए या सिंगुलर प्रोनाउन के लिए, और दीज एंड दोज का प्रयोग करेंगे आप प्लूरल के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं तो दिस इज अ बुक, तो वन बुक है ना, एक किताब को रेफर करने के लिए, बताने के लिए हमने प्रयोग किया है दिस का। एंड दैट इज अ बुक, अगर वो किताब दूर में रखी हुई है तो हम प्रयोग करेंगे दैट का। दैट इज अ बुक, वो एक किताब है, और नज़दीक में कोई चीज़ है तो कहेंगे दिस इज अ मार्कर या फिर दिस इज अ पेन एटसेट्रा।
और यदि आप प्लूरल के लिए यूज़ करना चाहते हो तो प्रयोग कीजिए दीज। और दीज का जब प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे इज का प्रयोग नहीं करना है, आपको क्या करना है, आर का। दीज आर बॉयज, और यहाँ पे बॉय भी नहीं लिखेंगे आप। कमिंग ऑन टू रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। सो व्हाट डू यू मीन बाय रेसिप्रोकल प्रोनाउन? रेसिप्रोकल का मीनिंग होता है पारस्परिक, रेसिप्रोकल, राइट? सो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, जस्ट टेक अ लुक, see the definition. Each other and one another are called reciprocal pronouns. It's very simple. Each other and one another, right? So how will you use these words in sentences? So reciprocal pronouns, just each other and one another. As I told you, each other and one another. So let's start. Each just start. We love each other, right? We love each other. Secondly, you can say that they love each other, or you can say we love one another, right? So these words are said to be reciprocal pronouns. इसका मीनिंग होता है एक दूसरे को, राइट फ्रेंड्स? एक दूसरे को हम लोग बोलते हैं ना, हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, या हम एक दूसरे के साथ अच्छे से मिलकर रहते हैं, या फिर हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, बखूबी जानते हैं। तो ये जो एक दूसरे को हम बोलते हैं each other और one another, each other and one another, तो these are said to be reciprocal pronouns. मैंने एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं। We love each other, क्या मीनिंग हुआ इसका, कि हम लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं, राइट? एंड दे लव each other, वे लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं। एंड we love one another, हम लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं, राइट? नाउ कमिंग ऑन टू रिलेटिव प्रोनाउंस। सो व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव प्रोनाउंस? जैसे कि नाम से ही क्लियर है, रिलेटिव प्रोनाउंस मतलब ये रिलेशन बताएगा, रिलेट करेगा। कैसे ये रिलेट करेगा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ लुक ऑन डेफिनेशन आई हैव रिटन डाउन। Relative pronouns, a relative pronoun refers to some noun or pronoun going before and relates the said noun or pronoun to a group of words coming after. आपने देखा होगा कि इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं कि लड़का जो खेल रहा है मेरा भाई है, या फिर जो व्यक्ति वहाँ खड़ा है मेरे पिताजी हैं, या फिर हम बोलते हैं बच्चा जो रो रहा है वो मेरा कजन है, या फिर मैं कहता हूं कि किताब टेबल पर रखी हुई है वो पुरानी है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हम बोलते हैं वहां जो हम प्रयोग करते हैं जो या जिसका या जिस पर या फिर जो कोई, तो ये सारे जो वर्ड्स आते हैं ना इसको हम कहते हैं व्हाट, रिलेटिव प्रोनाउंस। एग्जांपल्स देखकर इसे समझ पाएंगे आप। जैसे मैं कहूं द बॉय हु इज playing is my brother। अगर मैं इस सेंटेंस में आपको कहूं कि बताओ कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है, तो ये है हु है, राइट? और ये हु क्या कर रहा है, ये रिलेट कर रहा है इस नाउन का आगे के शब्दों से। द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर। और ये एक तरह से देखे तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया होता है। आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं द बॉय इज माई ब्रदर, बट ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको, ऑलराइट? So the boy who is playing is my brother। तो इसमें who को क्या कहेंगे आप, रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल लीजिए, द गर्ल who is dancing is a famous dancer, right? मतलब लड़की जो नाच रही है वो एक फेमस डांसर है। और दूसरे टाइप के भी सेंटेंस आप ले सकते हैं। जैसे मैं कहूं द बुक विच इज ऑन द टेबल इज माइन, राइट? और याद रखेंगे जो विच का प्रयोग किया जाता है ये नॉन लिविंग थिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं, और जो हु का प्रयोग किया जाता है ये लिविंग थिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं, राइट? द बुक विच इज ऑन द टेबल इज माइन। Right. Now coming on to interrogative pronouns. What do you mean by interrogative pronouns? So I have written down the
definition very clearly. The pronouns used for asking a question is called an interrogative pronouns, right? मतलब ऐसे प्रोनाउंस जिसे क्वेश्चंस किए जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसे प्रोनाउंस को इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। वैसे शब्द अगर देखेंगे आप तो हु यहाँ भी है और हु आपको रिलेटिव प्रोनाउंस में भी मिल जाएंगे, लेकिन देखना पड़ेगा कि उसका प्रयोग किस तरह से किया गया है। अगर प्रयोग हु का किया गया है कि द बॉय हु इज़ प्लेइंग इज़ माई फ्रेंड, तो यहाँ पे हु रिलेटिव प्रोनाउन है। और यदि इससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि हु आर यू, आप कौन हैं, या व्हेन इज़ ही कमिंग, वो कब आ रहा है, या व्हाट इज़ योर्स, आपका क्या है, या फिर विच इज़ हर्स, उसकी कौन सी है। आई मीन टू से दैट, कहते हैं ना कि कोई सामान है, साड़ियाँ रखी हुई हैं, तो उस औरत की कौन सी साड़ी है, तो विच इज़ हर्स, इस तरह से। तो ऐसे शब्द जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। तो इसके साथ मैं वीडियो लेक्चर को ख़त्म करता हूं, और अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करेंगे, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।